Hello students, in this video I will be telling you about proportional logic part 2. Part 1 I have already covered. You can see the previous video of it, and myself is Ms. Surbhi Saroha. Now moving on to the second part, it consists of all these topics, that is formal system, soundness and completeness, first order, predicate, logic. So in this video I will be teaching the first two, and after completing all these which mentioned below, I would be uploading the full PPT on SlideShare, but after I have completed all this part, right? So this is exactly how it look like, the formal system, that is soundness and completeness. This diagrams is telling about the soundness and completeness. This is like the circle, two circles you can see on screen. One is the semantic world, another is the semantic word. Syntactic and semantic. So what does syntactic world consist of? It consists of theorems and proofs. Syntactic, and it's with the help of arrow it sends the soundness to it. It makes the word like proof, and theorems it proves that okay, this is sound, to it gives a soundness to it. That is semantic world to the semantic world, and semantic words contain valuation and tautology, okay, and then it sends the completeness back to the syntactic world. So this is how it looks like. Now this is introduce semantics in proportional logic. This is validation function V, and definition of V synthetic, that is a definition of V that you can see here, that is V. This is synthetic false, and this is semantic false. So this one is semantic false and this is synthetic false, where F is called false and is one of the two symbol TF. Semantic false, VA belongs to B, is defined through what it is called the truth table. So in the truth table you can see that. So when this I have already explained. If you have read my first video of proportional logic, you will understand this. This is a continuation of the same. Fine. So VA and VB is there. If there is true false, that means false is near and other one is true, then it would be false. Otherwise all cases it would be true. This is tautology. An expression E is a tautology if VE equals to T for all valuation of constituent proportions. Each valuation is called a model. Now this is basically they are telling about what is this tautology. They actually ये सब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए. ये सब हम बता रहे हैं कि AI एक हमारी इंटेलिजेंस है. AI का मतलब क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आर्टिफिशियल है, जो कि रियल नहीं है, वो ह्यूमन क्रिएटेड इंटेलिजेंस है. तो अब हम जो प्रोपोर्शनल लॉजिक पढ़ रहे हैं, इसमें हम एक्चुअल में जो AI है, जो जैसे रोबोट्स वगैरह होती है, उनको हम एक लॉजिक देते हैं. वो लॉजिक ही तो इंटेलिजेंस है. सही है नहीं सर? जैसे मैं बोलूँ कि इज दिस टी हॉट और कोल्ड, तो एक इंटेलिजेंस यूज़ होती है कि हर टी की बात कर रहे हो तो वो तो हॉट ही होगी, राइट, दैट इज़. बट रोबोट में तो नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, तो एक लॉजिक यूज़ करता है जिससे वो इंटेलिजेंट बनते. तो प्रोपोर्शनल लॉजिक की बात है. इसमें साउंडनेस और कंप्लीटनेस की बात करी गई है इस वाले में, पीपीटी में. साउंडनेस मैंने जैसे आपको प्रीवियस इस वाले डायग्राम में दिखाया कि किस तरीके से साउंडनेस और कंप्लीटनेस प्रोपोर्शनल लॉजिक में होती है शो. तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट ये लिखना है, और आप इसको समझ पा रहे हो आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप एक इंटेलिजेंस देना चाहते हो, एक मशीन को उसे इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो आर्टिफिशियली, तो आपको उसको कुछ लॉजिक्स बताने पड़ेंगे. तो साउंडनेस ये बोले प्रोबेबिलिटी इज गिव्स वैलिडिटी. प्रोबेबिलिटी मतलब जब हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उस काम की, तो हम वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, वैलिडिटी मतलब वो सही है कह के. कंप्लीटनेस में वैलिडिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी. उसमें वैलिडिटी बताता है वो काम वैलिड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. तो दैट इज़ द वे. Now soundness is completeness of the system. Proved entities are indeed valid. और completeness में क्या बोला है, power of the system, और valid things are indeed provable. Now this is the last topic of this video. I'm discussing about first order predicate logic, that is FOPL.
in the topic of proportional logic, we have seen that how to represent statements using proportional logic. But unfortunately, in proportional logic, we can only represent the facts which are either true या false. क्योंकि proportional logic में या तो true होगा या false होगा, कुछ ऐसी बात नहीं होगी जो जो true false की है ही नहीं. जैसे मैं पूछूं your name is so and so, so इट इज़ लाइक ट्रू फॉल्स आप उसमें बता सकते हो कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये नहीं है. लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें आप ट्रू फॉल्स नहीं बता सकते. जैसे अगर मैं कुछ पसंद करती हूँ तो अभी आप एग्जांपल अभी देखेंगे. जैसे तो अगर मैं कह रही हूँ कि आई लाइक दिस, तो उसमें तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं ना ट्रू फॉल्स का. वो तो एक स्टेटमेंट मैंने बोली कि आई लाइक दिस, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अपार्ट फ्रॉम ट्रू और फॉल्स. ठीक है, मैं कुछ चीज़ खुद से कह रही हूँ कि आई लाइक दिस, सो दैट मीन्स आई एम नॉट आस्किंग योर ओपिनियन वेदर इट्स ट्रू या फॉल्स, आई एम टेलिंग यू इट इज़ दैट वेज. तो उस केस में हम फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक लगाते हैं. वो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ यूजिंग प्रोपोर्शनल, बट अनफॉर्चुनेटली इन प्रोपोर्शनल लॉजिक वी कैन ओनली रिप्रेजेंट द फैक्ट्स विच आर ईदर ट्रू और फॉल्स. Proportional logic is not sufficient to represent the complex sentences or natural language sentence statements. Okay, the proportional logic has very limited expressive power. Consider the following sentence which we cannot represent using proportional logic. ये कह रहे हैं कि ये दो चीज़ें हैं जो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स होती हैं, जो हम डेली बेस पे नेचुरल लैंग्वेज में बात करते हैं, उसमें ट्रू फॉल्स का नहीं होता है. कई सारी हमारी डेली वेज की बातें होती हैं जिसमें हम कोई भी स्टेटमेंट प्रोपोर्शनल लॉजिक की तरह नहीं चला सकते. हम उसकी प्रोबेबिलिटी राइटनेस की, करेक्टनेस की, कंप्लीटनेस की और साउंडनेस से नहीं जज कर सकते उन चीज़ों को. तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक की ज़रूरत पड़ी. अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं कौन सी ऐसी चीज़ें, जैसे कि सम ह्यूमन्स आर इंटेलिजेंट और सचिन लाइक्स क्रिकेट. तो कुछ इंसान होशियार हैं और सचिन को क्रिकेट पसंद है. तो टू रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट पीएल लॉजिक इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि इसमें कुछ पीएल लॉजिक पता ही नहीं चल रहा है इसमें. सो वी कैन रिक्वायर्ड सम मोर powerful logic such as first order logic. And yes, before I tell you about this, AI के लेक्चर्स मैंने प्रीवियस भी इसमें अपने चैनल पे डाल रखे हैं, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं. AI सब्जेक्ट उसका थोड़ा सिलेबस डिफरेंट था, वो CCS से रिलेटेड ये भी है, तो आप देख लेना. वो थोड़ा BTech के लेवल का AI था जो उनके सिलेबस में है, तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं. इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड मोर. वो ऑलरेडी है. कहो तो मैं टेलीग्राम पे लिंक भी शेयर कर दूंगी, बट यू कैन सर्व माई चैनल दोज हु वांट टू. सो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज़ अनदर वे टू रिप्रेजेंट वे ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट इज़ एन एक्सटेंशन टू प्रोपोर्शनल लॉजिक. तो ये एक्सटेंशन है प्रोपोर्शनल लॉजिक का ही, ठीक है. जैसे C++ एक्सटेंशन है C की, ऐसी प्रोपोर्शनल लॉजिक का एक्सटेंशन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है. First order logic is sufficiently expressive to represent the natural language statements in a concise way. First order logic is also known as predicate logic or first order predicate logic. First order logic is a powerful language that develops information about the object in a more easy way and can also express the relationship between those objects. First order logic, like natural language, does not only assume that the world contains facts like proportional logic, but also assumes the following things in the world. जैसे ऑब्जेक्ट है A, B, people, नंबर, कलर, वर्ड्स, थ्योरम, तो ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं. रिलेशन क्या है? इट कैन बी यूनिनरी रिलेशन बिटवीन as red, round or adjacent, or any relation such as the sister of, brother of, has color, comes between. function क्या है? father of, friend of, ये कुछ भी function, end of. as a natural language first order logic has two main parts. उसमें दो चीज़ें होती हैं, syntax और semantics, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल जो आपको आज के में पढ़ाना था. दो टॉपिक्स, ये वाले सिस्टम और सिमेंटिक्स में कल के लेक्चर में डिस्कस करूँगी कि सिस्टम और सिमेंटिक्स जो कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में होता है वो एक्चुअल में होता क्या है. फाइन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर. कीप स्टडिंग. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू.